हेलो, कैन यू सी दिस? कैन यू सी द स्क्रीन? बच्चों, यस मैम। कुछ दिख रहा है क्या अच्छे से? नहीं ना? थोड़ा डार्क है। अरे यहाँ पे लाइट चला गया रे। अच्छा ओके। यहाँ पे बारिश हो रही है और लाइट चली गई एक्चुअली में, इसलिए यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। रुको, एक एक वर्ड लिखती हूँ, देखो ठीक से दिख रहा है क्या? क्या लिखूँ? बेसिसिटी ऑफ अराइला माइंस लिखती हूँ। दिख रहा है? दिख रहा है ना? दिख रहा है मैम, लेकिन ब्लर है। मिस मिस ये ब्लर क्यों हो रहा है, मुझे ही समझ रहा नहीं है। रुको 1 मिनट, कुछ तो जुगाड़ करती हूँ, ठहरो 1 सेकेंड। आ गए क्या सब लोग? देखते हैं, लेट्स ट्राई, शायद से भी वो ब्लर चला जाए थोड़ी देर में। ओके, वी हैव टू स्टार्ट टुडे फ्रॉम बेसिसिटी ऑफ अराइल अमाइंस। ठीक है, वी हैव टू शो दैट अराइल अमाइंस आर आल्सो बेसिक इन नेचर. What is aryl amines? If I have a benzene ring which is attached with NH2, एक मिनट, हाँ, आई एम सॉरी, नहीं दिख रहा है ना? मुझे तो दिख रहा ही नहीं है, तुम लोगों को दिख दिख रहा रहा है है? मिस। दिख रहा है? सिखाऊं? Okay, so it is your aniline or aryl amine when it is treated with water. Now you all know what is the quality of the water. It is acting as an amphoteric in nature, correct? So what water will do, it will transfer one H plus ions to this. ठीक है, एक मिनट। हेलो, कैन यू सी दिस नाउ? फिर भी ब्लर है मैम। ब्लर है ना? क्या करूँ यार, यहाँ पे लाइट ही नहीं है तो इधर पे सब वो फोकस ही नहीं कर, कैसे करते हैं कैमरा को फोकस, वो तो बताओ जरा। 2-3 बार टैप करके देखो किधर टैप करूँ स्क्रीन पे? जहाँ पर आप किसी सकते हो। हाँ
मेरे फोन में नहीं होता रे ऐसा कुछ भी। मुझे तो दिख रहा ही नहीं है। रुको 1 मिनट जरा। अच्छा just give me 2 minutes हाँ please। Yes.
Hello, I'm making someone else host and then again I will rejoin. दिवेश तुमको host बनाऊं? दिवेश बाद में मुझे host बनाओ. मैं लीव होके ज्वाइन होती हूँ. हेलो. हाँ चलो आ गई लाइट. Is it visible now properly? Yes, ma'am. Hello. हाँ ठीक है चलो. Now we are seeing over here. This is the aniline and this is water. So what it will do now? It will form. I'm sorry for the delay हाँ क्योंकि वो थोड़ा problem ही हो गया था. NH3 plus OH minus. So since it is accepting the H plus ions, so it is called as ये जो इसने donate किया तो ये क्या हो गया? Acid. इसने accept किया तो ये क्या हो गया? Base. Understood? So this ये जो हमारा बना है यहाँ पे this is called as conjugate acid and base pairs. Correct? This is your base, this is your acid. So it is called as conjugate acid and base pairs. More is the stability of this conjugate acid base pairs, more stable is your compound. Understood? So that is the first thing which indicates that your aryl amines are basic in nature. Secondly, you can draw here a resonating structures. Now अभी सबको resonating structures तो आते हैं aniline के draw करने के लिए. Correct? So we have over here NH2. It is having one lone pair of electron. What it will do? It will shift this bond to this side and this to this side. Correct? So you are going to draw here a resonating structures like this. So it will be double bond NH2 plus. In this side it will be a negative charge. किधर जाएगा डबल बॉन्ड अभी? इधर और इधर. ठीक है. Now rotate this into the alternate position. That negative charge will go to the alternate position. So what it will do now? It will be a double bond NH2 plus negative charge will come here, here and here. ठीक है. Then again it will go to the another alternate position. It will give you double bond NH2 plus यहाँ पे again negative charge here and here. Finally what it will say, this will shift here, this will shift here. So you are going to get here another resonating structure like this. So it is NH2, correct? Since it is having one lone pair of electron, again it is stabilizing. More is the number of resonating structure, more stable is your compound, and this again indicates that your compound is basic in nature. समझा? So these are the two characteristics of basicity of aryl amines. Understood that? Correct? ठीक है. Resonating structure कितने हैं इसके? 5. 1 2 3 4 5. It is having 5 resonating structure. Because of this it is more stable. ठीक है. Aniline is more stable. Okay, clear? ये आप टेक्स्ट बुक में से पढ़ सकते हो बाद में. We will start with the next main part, which is your chemical properties of amines. Ready everybody? Hello. Yes, ma'am. अभी वापस से लाइट चला गया है लेकिन वो भी खुद ही फोकस हो गया. कैसे? ये क्या मालूम कैसे हो गया खुद ही.
इतनी देर से नाटक कर रहा था सड़ा हुआ कैमरा। चलो, now next start with the chemical properties. ठीक है, in that first one we are going to start with laboratory test for amines. ठीक है, what is the first laboratory test you are going to do to test whether it is acidic or basic? सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, लिटमस पेपर। ठीक है, I will take blue litmus paper, I will take red litmus paper as well. Now we all know, we have an idea that our amines are basic in nature. तो कौन सा पेपर कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? Acid will turn blue, litmus रेड paper पेपर red. ब्लू। Yes, very good. So red paper will turn blue, which indicates the presence of basic character into the amines. तो पहला ये proof हो गया। दूसरा, I will take my amine NH2 group. ठीक है, I am going to treat it with HCl. So when I'm going to treat it with HCl, it will react faster. It will form NH, मतलब एक H यहाँ पे ऐड हो जाएगा इधर पे, मतलब it will form NH3 plus and Cl minus. तो ये Lorry Bronsted acids and bases भी हो गए, correct? Since it is donating H plus ions, it is your acid. It is accepting H plus ions, it is your base. ठीक है, यहाँ पर उल्टा भी हो सकता है. So here it is called as, again this reaction shows that it is basic in nature, correct? अब अगर मैं इस पूरे रिएक्शन में, मतलब इसके अंदर वापस से अगर NaOH डालती हूँ, इसी रिएक्शन में अगर मैं NaOH डालती हूँ, मतलब मैंने क्या किया, बेस में बेस डाला, what will happen, again it will give you a reprecipitation, correct? Your base will get reprecipitated, वापस you are going to get the PPT of your amine. So this test indicates that amines are basic in nature. क्योंकि कभी भी कोई भी चीज acidic है, उसको पता करने के लिए we have to treat it with the base. तो हम लोग किसे ट्रीट करते थे, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ. सबसे पहले क्या है, you have to take a test tube, put your compound into this, वापस से blur हो गया ना, put your हाँ मिस। compound into this, then after that, हाँ थोड़ा सा adjust करो हाँ please, वो light आ रही जा रही है. So okay, you have to add the compound into that, then after that you have to add sodium bicarbonate. अगर वो उसमें पूरी तरह से dissolve हो गया, मतलब it is acidic. अगर dissolve नहीं हुआ तो acidic नहीं है, cancel, फेंक देने का. वापस से take a test tube, put your compound. Now this time I am going to add HCl. तो जैसे मैंने HCl ऐड किया, इसमें dissolve हो गया, मतलब my compound is basic in nature. Getting my point? Because it is your acid, sorry, it is your base. It will get dissolved into the acid completely. ठीक है, अब मैं वापस से इसके अंदर जैसे ही NaOH डालूंगी, जो डिसॉल्व हुआ था वो वापस से बाहर आ जाएगा. So this test confirms the presence of basic character. आया समझ में? यहाँ पे एसिड में भी क्या करना है, पहले कंपाउंड लिया, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डाला, डिसॉल्व हो गया, सपोज तो एसिडिक था. अब उसमें वापस से अगर आप कॉन्सेंट्रेट HCl डालोगे ना, वापस से पीपीटी बाहर आ जाएगा. तो इससे क्या साबित होता है कि इट इज एसिडिक इन नेचर. यहाँ पे बेसिक है कैसे पता चलेगा, टेक द कंपाउंड, पुट HCl, it will dissolve completely. Then do the regeneration by adding a base which is called as NaOH. Again you will get the PPT, which is called as basic test. Clear? ये सबको समझ आ गया अच्छे से? मैम NaOH ऐड करने के बाद कौन सा पीपीटी देगा? NaOH ऐड करने के बाद देखो ये बेस है और ये भी आपका बेस है, किधर गया, ये आपका कंपाउंड भी बेसिक था, राइट? सो व्हाट विल हैपन नाउ, इट विल फॉर्म NaCl. NaCl बन जाएगा यहाँ पे, Na विल रिएक्ट विथ Cl. ठीक है, और ये वाटर है, और आपका जो अमाइन था वो वापस से बाहर आ जाएगा. दैट इज व्हाई यू आर गोइंग टू गेट द पीपीटी. मतलब ये जो अमाइन था ना वापस से रीजनरेट हो जाता है. यू विल गेट द पीपीटी ऑफ NaCl, वाटर एंड दिस अमाइन का टुगेदर. So this indicates ओके it is insoluble in NaOH. So it is called as basic character. ये general test है जो लेबोरेटरी में किया जाता है, मतलब we do it in the laboratory. ठीक है, फिर अमाइंस का एक और टेस्ट है जो मैं आपको बताती हूँ, काफी सिंपल टेस्ट है वो. उसको बोलते हैं डायजोटाइजेशन टेस्ट. डायजोटाइजेशन रिएक्शन.
or it is also called as orange red dye stuff test. Orange red dye stuff डाई टेस्ट. ऑरेंज रेड मतलब कौन सा कलर पता है? शिवसेना का कलर है ना, भगवा कलर, वैसा कलर आता है. हाँ Yes. नाउ हाउ टू डू दिस टेस्ट, देखो अभी ध्यान से. सबसे पहले वी नीड वन आइस बाथ. ठीक है, व्हाट इज आइस बाथ? जस्ट टेक वन पतीली, इन दैट वी नीड आइस. ठीक है, so it is your ice bath because this dye can be prepared only in the presence of temperature 0 to 4 degree Celsius. So you have to maintain the temperature. Temperature कैसे maintain करेंगे? यहाँ पे बर्फ लेनी है बहुत सारी और इसके अंदर बहुत सारा नमक डालना है. ये लैब में होता है एक्सपेरिमेंट. ठीक है, उसमें बहुत सारा नमक डालोगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाएगा ना, हमने पढ़ा है सोल्यूशन में. सोल्यूट डालने के बाद और उसका कम हो जाता है. ठीक है, तो इसमें नमक डाल के रखेंगे. अभी सबसे पहले आप क्या करोगे? यू विल टेक योर टेस्ट ट्यूब नंबर 1. दिस इज योर टेस्ट ट्यूब नंबर 1. इसमें टेक योर कंपाउंड, जो आपका कंपाउंड है अमाइन, प्लस इन दैट ऐड कॉन्सेंट्रेटेड HCl. ठीक है, देखो टेस्ट कैसे होती है वो मैं बता रही हूँ. एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें आपका कंपाउंड लिया, यू हैव टू प्रूव दैट इट इज बेसिक इन नेचर. So first of all, take your compound, put concentrate HCl. Now heat this for 5 minutes. ठीक है, after heating that, put ice water into this so that it will get cooled completely from the inner side. Keep this test tube into the ice bath for few minutes. ये है आपका टेस्ट ट्यूब नंबर 1. ठीक है, टेस्ट ट्यूब नंबर 1 is ready. Now we'll take the another test tube. In this we require sodium nitrite, NaNO2. मिस, तो इसका फिर वो पाउडर अवेलेबल उस होता टेस्ट है. ट्यूब के हाँ, अंदर नहीं डालने का है ना वो आइस? क्या? नहीं नहीं, आइस नहीं डालना है. आइस बाथ में इसको रखना है ताकि इसका भी टेम्परेचर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस हो जाए. अगर टेम्परेचर थोड़ा भी बढ़ेगा ना तो आपका कलर ही नहीं आएगा. ठीक है, यहाँ पे जो आप डाई बना रहे हो, ऑरेंज रेड डाई, फॉर दैट वी रिक्वायर अ टेम्परेचर 0 to 4 डिग्री. तो यहाँ पर ना एक्चुअली क्या करते हैं, थर्मोमीटर लगा के रखते हैं. जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होना चालू होता है और आइस डालते हैं और नमक डालते हैं. वो जाड़ा वाला नमक रहता है, पता है, हाँ मीठ मिस. जिसको बोलते हैं, वो वाला नमक डालते हैं, पतला वाला नहीं. उससे फ्रीजिंग पॉइंट नीचे नहीं जाएगा. ठीक है, नाउ वी विल टेक हियर NaNO2. its powder is available very easily. ठीक है, you have to just put it in the water, shake it. एकदम exothermic endothermic reaction है already. You have to put this test tube also into the ice bath. This is your test tube number 2. Now take the third test tube, in which we are going to take beta naphthol. Beta naphthol, what it is? ये देखो, this is your 2 benzene ring, fused benzene ring. Along with that, at the second position you are having OH group, so it is called as beta naphthol. It is also phenol. Now phenol is properly soluble in NaOH, so take this beta naphthol, put it into the NaOH, dissolve it completely. Again put this test tube also into your ice bath. तीनों समझ आया what I did? ठीक है, क्या करना है यहाँ पे? फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, कंपाउंड प्लस HCl, जस्ट हीट इट. आफ्टर हीटिंग पुट सम अमाउंट ऑफ आइस कोल्ड वाटर इनटू दिस so that it will get cooled completely. In the second test tube, take NaNO2. अभी NaNO2 जो है, that is called as diazotization. जो डायअज़ो, अज़ो का मतलब होता है N2. N triple bond N is called as azo, which is giving proper color to your compound. जब डाइज बनाए जाते हैं तो उसमें azo compound plays a very important role. We are getting different colors nowadays. So in that case we require chromophores and oxochrome. वो बाद में बताऊंगी मैं. तो ये जो है एक तरह का chromophore है. Chromophore means which is providing the color to your substance. ठीक है? So this is your azo. This is the second compound, which is NaNO2 in the water and beta naphthol in NaOH. तीनों को मैंने आइस बाथ में रख दिया so that their temperature reaches to 0 to 4 degree Celsius. जहां तक हो सके वो 0 पे ही रखना है, 4 तक भी नहीं लेके जाना है. After attending the temperature, you have to transfer test tube number 1 into 3. ठीक है, and finally 3 into 2. You will get here orange red dye stuff.
ऑरेंज कलर, शिवसेना का कलर कैसा होता है, एकदम डार्क ऑरेंज जैसा, वैसे बहुत ही अच्छा कलर आता है. So that is one of the method for the preparation of this, and this test indicates the presence of primary amine. Means ये टेस्ट करने के बाद बच्चे वहां बुक में लिखते हैं primary amine present, which is a confirmatory test for primary amine. Understood? अच्छा You मिस, have तो to ये put टेस्ट this. है वो ऑरेंज मतलब डाई बनाने के काम का नहीं है, वो सिर्फ टेस्ट है ये क्या? नहीं 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 नहीं, डाई भी बनता है ना उससे. वो जो कलर आता है, that color is used for making dye also. ठीक है, जो जहाँ पे भी अजो कंपाउंड्स यूज होते हैं NaNO2 and HCl, that is called as azo. It is always used for the preparation of dyes, but this is one of the tests which confirms the presence of primary amine as well. समझा? तो यहाँ पे लेबोरेटरी टेस्ट में अगर ये टेस्ट किया और ये पॉजिटिव आया, अभी ये ऊपर वाला टेस्ट तो आया, तो इट विल टेल यू अबाउट द बेसिक कैरेक्टर. बेसिक तो बहुत सारी चीजें हैं. प्राइमरी अमाइन भी बेसिक है, सेकेंडरी अमाइन भी बेसिक है, टर्शियरी अमाइन भी बेसिक है, करेक्ट. But if you are having primary amine, it will give you orange red dye stuff. अगर secondary amine है ना, तो oil जैसा आता है कलर. तो वो oil वाला कलर तो है नहीं ना इसमें. So here you are going to get orange red dye stuff which indicates the presence of primary amine. तो ये एक टेस्ट है जिससे पता चलता है. Okay? Is it clear? मिस तो मेरे को एक डाउट. हाँ बोलो ना. मिस ये फर्स्ट वाले टेस्ट ट्यूब में हम लोग ने मिस वो टेस्ट ट्यूब के अंदर मिस वो हम लोग ने आइस कोल्ड वाटर डाला क्या? हाँ, ये टेस्ट में थोड़ा सा आइस कोल्ड वाटर इसलिए डाला क्योंकि इसको गर्म किया था ना. तो अंदर से अगर गर्म हुआ और बाहर से उसे थोड़ा ठंडा हुआ, अंदर से ठंडा नहीं हुआ, तो मेरा टेस्ट ही नहीं आएगा. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आइस कोल्ड वाटर इसके अंदर भी डाल देते हैं ताकि अंदर से भी वो ठंडा हो जाए, 0 डिग्री पे पहुंच जाए. समझा? अच्छा, इसके लिए इसको थोड़ा सा पानी डालते हैं. अभी देखो ना, कोई कोई चीजें बाहर से ठंडी लगती है, अंदर से नहीं हुआ होगा ठंडा, तो क्योंकि हमने इसको हीट किया था, कंपाउंड डाल के, एसिड डाल के, वी हैव हीटेड इट. So to make it cool from inner side also, so we have to add ice cold water. इन दोनों में नहीं डाला क्योंकि ये दोनों भी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ऑलरेडी वो ठंडा होता है. जैसे आप NaOH पानी में डालोगे ना, NaNO2, आपका हाथ पूरा ठंडा हो जाएगा, एकदम आइस जैसा. तो वो ऑलरेडी एंडोथर्मिक है, बट ये एक्सोथर्मिक था. So you have to cool it from inner side also, so we have to add ice cold water. इसको बोलते हैं dilution with the ice cold water. समझा? मतलब पूरा मुद्दा ये है इस पूरे एक्सपेरिमेंट का कि आपको टेम्परेचर 0 डिग्री पे रखना है, बस. और भी बहुत अलग अलग बट कंपाउंड ले सकते हो. अमाइन की जगह पर आप बहुत सारे ऐसे सल्फोनिक ग्रुप्स लेके रेड कलर का डाई बना सकते हो, पिंक कलर का डाई बना सकते हो. यू कैन चेंज द अमाइनो ग्रुप्स. ठीक है, जितना अमाइनो ग्रुप आप चेंज करते जाओगे उतने अलग अलग कलर के डाइज आपको मिलते जाएंगे. हाँ बोलो ना, बोलो. मिस तो ये इंडस्ट्री में भी वो मतलब अलग अलग डाइस बनाने हाँ, के लिए सेम. यस यस, सेम प्रोसीजर दे आर यूजिंग. बाद में उसको फिल्टर करते हैं, फिल्टर करके उसको सुखाते हैं, फिर वो कलर आता है, फिर वो कलर यूज होता है, ब्रिक रेड कलर मिलता है, बहुत सारे हैं. और अगर वो अच्छे से टेस्ट नहीं आया ना, तो ये ऑरेंज की जगह काला हो जाएगा, ब्लैक कलर मिल जाएगा, जो खराब हो गया है तो ऐसे मिस बोलते मतलब हैं. वो ये सेम प्रोसीजर करते हैं बट लार्ज स्केल. हाँ, लार्ज स्केल पे करते हैं, यस. और यहाँ पे देखो, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये टेम्परेचर वाला है. सेकेंडली, यू कैन चेंज दी अमाइंस. अभी यहाँ पे मैंने प्राइमरी अमाइन लिया, दे में टेक थोड़ा और आगे एडवांस. सपोज उन्होंने कुछ सब्स्टिट्यूटेड अमाइन ले लिया, सपोज दिस इज माय एनिलिन, इसके साथ सपोज उन्होंने नाइट्रो कंपाउंड वाला ले लिया, तो उनको कुछ अलग कलर का डाई मिलेगा. फिर नाइट्रो की जगह हाँ पर मिस सल्फोनिक ग्रुप ले लिया, तो कुछ अलग कलर का कंपाउंड मिलेगा. इस तरह से बहुत सारे बनाए जाते हैं. तो मैंने बोला ना, दो चीजें होती है, वन इज कॉल्ड एज ऑक्सोक्रोम, अनदर वन इज कॉल्ड एज क्रोमोफोर. क्रोमोफोर कलर देता है, ऑक्सोक्रोम हेल्प करता है कलर आने के लिए. तो दो चीजें मिक्स करके बनाई जाती है. अभी वो तुम लोग के सिलेबस में नहीं है, वरना मैं पूरा डिटेल में पढ़ाती थी. बट अभी सिर्फ इतना याद रखो कि दिस इज वन ऑफ द टेस्ट which is the confirmatory test for the presence of primary amines. ठीक है, ऑरेंज रेड डाई स्टफ याद रखना ये. ठीक है. any other questions? I hope you understood both the test. What was the first test? Test with HCl. It will get dissolved completely. Of course, if it is a base, it will get dissolved into the acid completely. उसको वापस से confirm कैसे करना है? Put base into base. It will give you the PPT regeneration. Second test जो किया था diazotization test. Take 3 test tube. एक में compound plus HCl, एक में NaNO2, एक में
बीटा नेफ्थोलिन NaOH। टेस्ट ट्यूब नंबर 1 to 3, 3 to 2, खत्म, टेस्ट आ गया। समझा क्या? एनी क्वेश्चन? हाँ, ये लिखो नहीं, ये है टेक्स्ट बुक में, चाहिए तो पेज नंबर लिख के रखो वहां पे। पेज नंबर 290, 290। इट इज देयर इन द टेक्स्ट बुक, सो नो नीड टू राइट। अभी इसके बाद जो करेंगे ना, अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस, वहां से लिखना। पढ़ना है टेक्स्ट बुक में तो पढ़ लो, देयर इज अ पेज नंबर 290 पे लिखा है। इफ यू वांट टू रीड यू कैन गो थ्रू। ये तो आगे पढ़ाती हूँ, सिखाऊं आगे, घर पे पढ़ लेना बाद में। हाँ मिस्टर। Now next is alkylation of amines, which is called as Hoffman exhaustive alkylation. कल क्या पढ़ा था आपने? Hoffman gradation. Now exhaustive मतलब you have to just keep on adding the alkyl groups into that. This is number 2, which is Hoffman's exhaustive alkylation. Alkylation means addition of alkyl group. Exhaustive मतलब excess amount you are going to just add. ठीक है? It's a very simple reaction. CrNH2. Put Rx. Rx is what? Alkyl halide. ठीक है? What will happen? One H will go with this X. क्या बनाया? HX. R इधर joint हो जाएगा, तो क्या बना देगा यहाँ पे? R2NH, sorry, R2NH plus HX. क्या आ गया? Secondary amine आ गया. This is your secondary amine. This is your primary amine. Now take the secondary amine. R2NH plus again add RX. This X will go with this H और R वापस से join हो गया, तो what you will get? R3N plus HX. ये क्या हो गया? Tertiary amine. ठीक है? Now take R3N plus again RX. तो अब ये क्या करेगा? पूरा ऐड हो जाएगा. It will form R4N plus X minus. This is called as trialkyl ammonium halide. Sorry, not tri, tetra. I'm so sorry. It is tetra means 4. Tetraalkyl ammonium halide. इसको बोलते हैं quaternary ammonium salt also. Quaternary means 4. So you are getting primary to secondary, secondary to tertiary, tertiary to quaternary. So you are going to add, अभी और add करेंगे तो कुछ होगा क्या? अभी पेंटा वाला तो नहीं बन सकता है. Max to max it can form quaternary. So you are adding here excess amount of that. That is what is called as Hoffman's exhaustive alkylation. Okay, you are going to get the mixture of primary, secondary, tertiary and quaternary amines together. That is what is exhaustive alkylation. Samjha? Now reaction can be carried out in the presence of mild sodium bicarbonate also. Sodium bicarbonate क्यों ऐड करते हैं इसमें? क्योंकि आपको HX मतलब एसिड है ना? HX is acid or not? अगर मैंने X की जगह पर Cl ले लिया तो HCl बन जाएगा. Br लिया तो HBr बन जाएगा. Correct ना? So to neutralize that, we have to use a very mild base so that this acid will get neutralized. नहीं तो आपका सारा ये जो compound है acidic character में आ जाएगा. Understood? So this question may ask in the exam. Why we have to add mild sodium bicarbonate into this reaction so that the acid formed can be neutralized very easily. समझा ये reaction? Why it is called as exhaustive? Hello? यहाँ से देखो, एक H गया, X बन गया, R2 join हो गया, फिर R2 के साथ वापस मिल गया, tertiary के साथ, ठीक है? देखो फिर मैं क्वेश्चन देती हूँ, सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या मतलब रोल है मिस? सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? बेसिक है कि नहीं? सोडियम बाइकार्बोनेट इज और बेसिक बेकिंग सोडा जो हम लोग घर पे भी यूज करते हैं. करेक्ट? इट इज स्लाइटली बेसिक इन नेचर. सो व्हाट इट विल डू, इट विल न्यूट्रलाइज दिस एसिड. इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और NaCl बनाता है ना वो, या फिर सोडियम कार्बोनेट बनाएगा. दैट कैन बी इजीली सेपरेटेड फ्रॉम द अमाइंस, क्योंकि ये आपस में
insoluble रहता है, तो you can just filter, you will get your secondary amine, tertiary amine, quaternary ammonium salt very easily. समझा? तो मिस ये हम लोग को कैटलिस्ट के तौर कैटलिस्ट नहीं है वो बेटा, वो सिर्फ हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, उसको बेस को जो अपना एसिड बना है उसको डिसॉल्व करने के लिए यूज कर रहे हैं। तुम्हारे पास एक चीज एक्स्ट्रा है, अभी मैंने अगर यहाँ से एसिड नहीं निकाला तो मेरा जो सारा कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, सब एसिडिक बेसिक सब करके न्यूट्रल मिलेगा मुझे, जबकि मेरा ये सारा कंपाउंड क्या है, बेसिक है ना, तो मुझे हाँ उसके मिस। प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक में बाहर निकालना है, तो मैं जब ये ऐड करूंगी तो ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। अब ये बेस को तो नहीं न्यूट्रलाइज कर सकता क्योंकि स्ट्रॉन्गर बेस है, पर ये इसको न्यूट्रलाइज बहुत इजीली कर सकता है क्योंकि वो वीक एसिड है। समझा? दैट इज व्हाई वी आर एडिंग दिस हाँ सोडियम मिस। बाइकार्बोनेट जस्ट टू न्यूट्रलाइज द HX फॉर्म्ड ओवर देयर। और वो बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में बनता है, बहुत ज्यादा नहीं बनता। ठीक। लिखो ये इतना फटाफट पहले, देन आई विल गिव यू क्वेश्चन। मतलब ये आर की जगह पर आई विल गिव यू समथिंग एंड इसकी जगह पर आई विल गिव यू समथिंग, यू टेक आउट द आंसर्स। ठीक है? ओके, डन एवरीबॉडी? यस मैम। हाँ, अभी मैं क्वेश्चन देती हूँ, एग्जॉस्टिव करना है, ठीक है? CH3NH2 प्लस CH3I, जस्ट कीप ऑन एडिंग। आएगा करने के लिए यहाँ से एक H निकालो, I के साथ जाएगा, CH3 ट्वाइस NH प्लस HI आएगा। एक बताऊं करके? नहीं मैम आज। देखो HI, हाँ, जैसे क्वार्टरनरी तक लेके जाओ। हाँ, क्वार्टरनरी तक करना है, यस कशिश। अभी यहाँ पे देखो मैंने क्या ऐड किया, कौन सा ग्रुप ऐड कर रहे हैं, मिथाइल। So it is called as Hoffman exhaustive methylation. अगर इथाइल ग्रुप ऐड करूंगी तो Hoffman exhaustive ethylation. Understood? जो आप ऐड करोगे ना उसको ही वो ऐड करना है, बोलना है। उसके बाद इथाइलेशन भी है, बाद में बताती हूँ। I hope you understood this.
क्या लिखा है दिवेश, मेरे को नहीं समझा। CH6 कहाँ से आया? 4 आएगा ना? क्या लिखा है? CH6Ni। हाँ बराबर। CH3 4 टाइम्स N प्लस एंड I माइनस। हाँ करेक्ट। हाँ ठीक है, वापस सॉल्व करो। वो खुद ही फोकस्ड और अनफोकस्ड हो रहे हैं। प्लीज मैनेज फॉर टुडे। हो गया सबका? हाँ अभी इसको क्या बोलेंगे? अल्काइलेशन के मिथाइल, दिस इज मिथाइलेशन। ठीक है, एक और क्वेश्चन देती हूँ। देखो एग्जाम में कैसे देंगे पता है? दे विल गिव यू दिस एंड राइट डाउन एक्सेस ओवर हियर। अगर एक्सेस लिखा मतलब क्वार्टरनरी तक जाने का। रुको जरा। तो इसको क्वार्टरनरी के आगे मतलब नहीं होता। नहीं नहीं, क्वार्टरनरी इज द लास्ट। चलो C6H5NH2 मतलब इट इज योर एनिलिन प्लस CH3I। करो, दिस इज एक्सेस। लेट्स सी, it will focus automatically. Yeah, I'm so sorry for that. एक H निकालो, NH, और यहाँ पे CH3 लिखो। इसके बाजू में मत लिख देना क्योंकि C6H5 है। Once you're done, please let me know. Done? Okay.
सबको आ गया आंसर? एक आएगा C6H5, फिर N प्लस CH3 3 टाइम्स एंड I माइनस, बराबर है ना? हाँ मैम बराबर। चलो आगे बढ़े, हो गया सबका? The next we'll do Hoffman elimination reaction. See, Hoffman played very important role in amines. Now this is reaction number 3 is Hoffman, sorry एक ही F है, Hoffman elimination. ठीक है? Now see the reaction. You take over here tetra alkyl ammonium halide. ठीक है? So I will take here CH3 CH2 CH2 N plus. Then we have here CH2 CH3 3 times and iodide. Is it right? Quaternary हो गया ना? इसका नाम क्या आएगा? N, N, N. Triethyl propyl ammonium iodide. कैसे ट्राइथाइल? ये देखो ना, 3 है ना, तो N, 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 all these 3 are joined with N. So triethyl and this is a propyl. ठीक है? Ammonium is N, iodide is I. Quaternary लिया ना? Not treated with AgOH, silver hydroxide. What you have to remove? This I will go with this Ag. It will form AgI और ये compound यहाँ पे हम लोग को कैसा मिलेगा देखो, it is CH3. ठीक है? CH2 N. अब मैं इसको ओपन फॉर्म में लिखती हूँ. यहाँ पे हो जाएगा CH2 CH3 एक, फिर दूसरा है CH2 CH3 2, यहाँ पे हो गया CH2 CH3 3, और यहाँ पे आ गया OH माइनस. यहाँ तक किसको डाउट है पहले ये बोलो. This is done in the presence of moist silver oxide, Ag twice O. Very important it is, and you have to just heat this. Clear? What I did 3 times I have written CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, and this propyl group is as it is. ठीक है? This will remove AgI and forms OH. इसको बोलेंगे N, 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 ट्राइथाइल प्रोपाइल अमोनियम. सब सेम रहेगा. N, 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 ट्राइथाइल प्रोपाइल अमोनियम. यहाँ पे आयोडाइड था, ये क्या है? हाइड्रोक्साइड है ना, तो नाम सेम आएगा कि नहीं? N, N, it is triethyl, then propyl. बाकी का सब सेम है ना? ये बाकी का सब सेम है. यस अमोनियम क्या आएगा आगे? हाइड्रोक्साइड. ये इतना समझा? ये स्टेप समझ आ गया? अभी ये खत्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट स्टेज भी है इसका. रुको कहाँ लिखूं, अभी नए पेज पे लिखती हूँ, एक मिनट. नाउ आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन? वापस से लिख दूं क्या पूरा रिएक्शन नए पेज पे ही? तुम लोग को फिर इजी पड़ेगा ना. रुको पूरा ही लिखती हूँ वापस. चलो हॉफमैन एलिमिनेशन वापस लिख देती हूँ. तो टेस्ट CH3 CH2 CH2 N plus, then CH2 CH3 3 times I minus. ठीक है? What is the name? It is N, N, triethyl propyl ammonium iodide. ठीक है? Treat this with silver hydroxide. Heat this
in the presence of moist silver oxide. AgI बाहर आ जाएगा and you will get another compound as CH3 CH2 CH2, ऊपर का ही लिख रही हूँ मैं, ठीक है. So it is N. अभी ये 3 टाइम है ना, तो मैं उसको अलग अलग लिखती हूँ. CH2 CH3, this is also CH2 CH3, here also CH2 CH3, और ये हो जाएगा अभी OH माइनस. इसका नाम लिखोगे आप लोग, N, ट्राई इथाइल प्रोपाइल अमोनियम. खाली क्या लिखना है, हाइड्रोक्साइड. ठीक है. अब इसके बाद क्या करना है, यू हैव टू रिमूव वाटर -H2O. -H2O कैसे निकलेगा, ये देखो, ये दिख रहा है कंपाउंड, ये वाला. इधर से एक H इसके साथ जाएगा, ठीक है. सी दिस प्रॉपर्ली. ये जो एक H है इसके साथ जाएगा, तो क्या बन गया, अल्कीन. CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द मेन प्रोडक्ट. प्लस ये सब ऐसे ही रहने वाला है, विच इज CH3 CH2 देन CH2, बाद में N, ये भी सेम रहेगा, CH2 CH3, and here also it is CH2 CH3. What is the name, N, N, diethyl propyl amine, है ना. It is N, N. Di means two, so it is diethyl. ये प्रोपाइल है ना, डाइथाइल प्रोपाइल अमाइन. समझा. So main product is ethene. That is what is called as elimination. What you have मिस ये removed, लास्ट स्टेप में water. लास्ट स्टेप क्या हुआ, नहीं समझ आया. हाँ मिस ये यहाँ 18 तक समझा, यहाँ तक हाँ मिस समझा. यस हाँ, अभी ये ऊपर वाला देखो, ये क्या है, CH2 CH3 है. आई हैव टू रिमूव वाटर. तो यहाँ से अगर मैं एक H निकालूं, तो इसके साथ जाके क्या बन गया, वाटर रिमूव्ड हो गया. तो यहाँ पे क्या बच गया, अभी CH2 CH2 बन गया, मतलब इट इज और इथीन. यस और नो. हाँ मिस समझा अभी. हाँ, और तो ये मिस वो वैसे ही लिख रिमूव दिया हो गया ना वापस वहां से, से. बस वो रिमूव हो गया. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन. समझा. मैम इथेन हमारा मेन प्रोडक्ट किसका है? इथीन इसमें हमारा मेन प्रोडक्ट है. इस केस में इथीन इज द मेन प्रोडक्ट, क्योंकि हॉफमैन एलिमिनेशन में द मेन प्रोडक्ट इज इथीन. आप इसको भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट हियर मतलब ये जो प्रोसेस किया गया था जस्ट टू मेक इट, जस्ट टू मेक द अल्कीन ओनली, दैट इज व्हाई इथीन इज योर मेन प्रोडक्ट. समझा. ओके मैम. पहले हेडिंग लिखो, हॉफमैन एलिमिनेशन. अब ये जो हाइड्रोक्साइड है ना, इट इज डेलिक्विसेंट इन नेचर. ये लिख लेना नाम, हाँ भूलना नहीं. इट इज डेलिक्विसेंट इन नेचर. व्हाट इज डेलिक्विसेंट, इट विल एब्सॉर्ब मॉइस्चर. लिखा, चलो लिखो, ये कॉपी करो. कुछ भी नहीं समझा होगा तो मुझे पूछो प्लीज. यहाँ पे आपको नाम लिखना है, N, N. पूरा सेम रहेगा, खाली आयोडाइड की जगह पर हाइड्रोक्साइड लिखना है. मिस ये रिएक्शन क्या हुआ.
Done, everybody? No, ma'am. Okay, okay. ब्लर दिख रहा है। चलो हो गया मैम। ओके, अभी जो नेक्स्ट है नाउ रिएक्शन नंबर 4। एक मिनट देखने में कितना है जरा। ठीक है, 7 रिएक्शन है टोटल। काफी है बेचा चलो नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ अमाइंस। ठीक है, व्हाट इज असाइल ग्रुप? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज असाइल ग्रुप? बहुत बार पढ़ा है तुम लोगों ने ऐसा। किसने पढ़ा है असाइल ग्रुप? किसने पढ़ा है असाइल ग्रुप? फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन याद है? असाइल ग्रुप ऐड करते हैं ना, फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन, याद है कि भूल गए सब? हेलो मैम आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। हेलो, अब ठीक है? अभी भी हो रहा है। मैं ऑन कर दूं? बोलूं के बाद समझ से चलो 2H5 NH2। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? फटाफट बताओ। इट इज कॉल्ड एज ethanamine, am I right? It is ethanamine. When it is treated with C double bond O Cl CH3, एक्चुअली में क्या है? CH3COCl है, मतलब ये क्या है? एसिटाइड। Here they have written ethanol chloride। ठीक है, this reaction in the presence of pyridine. Now first of all we will get here मिस one वीडियो फ्रीज हुआ है। intermediate which is C2H5। संडे फ्रीज हुआ आपका। अभी ठीक है? मैम वीडियो नहीं दिख रहा हेलो, है। मिस नहीं वीडियो दिख रहा फ्रीज हो है? गया है। एक मिनट रुको। अच्छा एक मिनट रुको, क्या पता क्या हो रहा है आज, मेरे को समझ रहा नहीं है। लीव होके वापस ज्वाइन करते होगी, और क्या करूँ, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है आज। ठीक है, क्यों नहीं होस्ट? चलो साक्षी तुमको होना, क्यों नहीं हो रहा है कोई भी होस्ट अभी?
now. हेलो। यस मैम। अभी आ गया ना, अभी दिख रहा है ठीक से? हाँ मैम। अरे वो यहाँ पे ना सब नेटवर्क स्लो है और बहुत प्रॉब्लम है मेरा, थोड़ा जरा नहीं, एक्चुअली बहुत ही प्रॉब्लम है। ये देखो मैंने क्या बोला, असाइलेशन ऑफ अमाइंस। सो असाइलेशन मतलब COR is called as acyl group. ठीक है, this is your ethanamine, this is called as acetyl chloride or ethanoyl chloride, and this reaction is done in the presence of pyridine. इतना ही बोला था तब तक, ठीक है? Now see what is the reaction here, which is N, एक H ऊपर लिखा, एक H नीचे लिखा और उसको joint कर दो, तो क्या हो जाएगा? O Cl CH3। क्या किया मैंने? दोनों को joint। step रिमूव HCl। ठीक है, तो HCl कहाँ से रिमूव करें? सपोज ये H गया और यहाँ से Cl गया, तो एक बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा अभी? C2H5, ये हो गया NH, ये बन गया C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया अभी CH3 प्लस HCl हो गया। देखो ना ग्रुप C double bond ONH, so it is called as N-ethyl ethanamide। समझा बच्चों? It is called as N-ethyl ethanamide। Easy reaction, समझा? What I did in the first step, we have just joined these two. In the next step, remove this HCl, it will become C double bond O, so C2H5 ऐसे ही लिखा। NH is also same, then C double bond O and then CH3, so it is N-ethyl, और ये क्या अमाइड ग्रुप है ना, तो इट इज कॉल्ड एज इथेनामाइड। वह इथेनामाइड है, देखो 2 कार्बन है, तो इट इज कॉल्ड एज N-ethyl इथेनामाइड। वापस से वीडियो फ्रीज है, ऐसे कैसे रे? हेलो? Yes, ma'am, it is freezed. हाँ मिस नहीं, मतलब हिल रहा नहीं। मैं लिख रही हूँ वो नहीं दिख रहा है? मैंने जो बोला वो समझ में आया अभी? ये जो रिएक्शन है वो समझ में आया? अच्छा, तो वीडियो ना लैग हो रहा है एक्चुअली, प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है ना। हेलो मिस। हाँ हाँ हाँ, वो धीरे धीरे हो जाएगा। मेरा लिख के हो गया एक्चुअली, ये ना यहाँ पे ये लैग हो रहा है। अरे यार क्या करूँ मैं अभी? हाँ मिस वही आवाज आ रहा है बट ये वीडियो ही। हाँ हाँ हाँ, समझा, मुझे समझा, प्रॉब्लम समझा, वीडियो लैग हो रहा है एक्चुअली। दूसरे से कनेक्ट करना चाहिए था, शाम को ना सिखाऊंगी तो दूसरे फोन से कनेक्ट करती हूँ। ये एयरटेल भी सड़ा हुआ है एकदम। अभी हुआ क्या कंप्लीट? प्रोडक्ट मेरा हो गया लिख के एक्चुअली। मैम फुल ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है। हम इस पूरा ब्लैक है। ब्लैक हो गया? हम इस बुक भी नहीं दिख रही। अच्छा रुको, मैं एक काम करती हूँ, दूसरे हॉटस्पॉट लेती हूँ। रुको 1 मिनट। हाँ हाँ मिस, आया मिस। है क्या? नहीं तो मैं दूसरा हॉटस्पॉट लेती हूँ तब तक। आ गया मैम। लिखो तब तक, कॉपी करो। रिएक्शन समझा क्या मैंने क्या लिखा है? हाँ मिस थोड़ा हाँ थोड़ा। थोड़ा थोड़ा अच्छे से समझो। ये देखो क्या लिखा है, ये NH ऐसे ऊपर नीचे लिख दिया, ठीक है? इन दोनों को ज्वाइंट कर दिया ज्वाइंट, CO Cl CH3। नाउ रिमूव दिस HCl। ठीक है, वी हैव रिमूव्ड HCl, ये रहा, यहाँ से बाहर आ गया,
और अभी क्या हो जाएगा C2H5, दिस इज NH एज इट इज, C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3। तो इसका नाम क्या आएगा, एन इथाइल, और कितने यहाँ पे कार्बन है, 2, और ये अमाइड ग्रुप है, तो इट इज कॉल्ड एज एन इथाइल इथेनमाइड। अभी समझा? यस मिस। हाँ, इतना कॉपी करो, तब तक मैं ना ये करती हूँ, दूसरा हॉटस्पॉट लेती हूँ किसी का, तो रुको। हाँ, एक मिनट रुको, जरा 2 मिनट दे दो मुझे, मैं कनेक्ट कर रही हूँ। रुको आप बच्चों, 1 मिनट जरा। अभी देखो अच्छे से दिखेगा, एकदम स्ट्रॉन्ग वाला हाँ अभी नेटवर्क दिख ले रहा है। लिया, दिख रहा है? अभी समझा रिएक्शन के नहीं समझा, वापस समझाऊं नहीं तो? मैम समझा कुछ। कॉपी कर लो फटाफट। अरे बहुत प्रॉब्लम होता है रे, इधर बारिश वारिश हो जाती है ना, तो बहुत गड़बड़ होता है। वापस लाइट चला गया। Once are done, please let me know. हो गया मैम। Okay. Done. I hope there is no question, no doubts. Now, why we are adding pyridine? Pyridine क्यों ऐड किया? Pyridine is a base, ठीक है? HCl is an acid, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके, चलो ऐसा सिमिलर एक और रिएक्शन देती हूँ, आप लोग कंप्लीट करो। जस्ट अ सेकेंड। चलो, the reaction is this one. Same है, same. CH3 NH C6H5 plus C double bond O Cl CH3 in presence of pyridine. फिर आपको एक ये मिलेगा, and after that you have to remove HCl of course. क्या प्रोडक्ट मिलता है वो बताओ? इसका नाम है N मिथाइल एनिलिन। N मिथाइल एनिलिन, क्यों देखो N और ये है एनिलिन ना, C6H5 आएगा करने के लिए सेम रिएक्शन।
इन दोनों को पहले जॉइंट करो, बाद में ये HCl निकालो। Will you be able to do this? Yes, ma'am. हाँ, ये अमाइन प्राइमरी है कि सेकेंडरी है जो मैंने अभी आपको दिया? Secondary. सेकेंडरी, वेरी गुड। आ गया बच्चों प्रोडक्ट? हाँ मैम। Everybody, should I write down the product or you understood? Please feel free to ask. It's absolutely fine. नहीं आया होगा तो भी I will write down that. Should I write down? Final product लिखती हूँ, ठीक है? It is CH3 NH C6H5 C double bond O, sorry H नहीं आएगा, I'm so sorry. C double bond O CH3, है ना? ये आया बच्चों सबका? हाँ मैम। चलो इसका नाम क्या आएगा? N मिथाइल, फिर N फिनाइल इथेनमाइड, है ना? इथेनमाइड। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन ये है कि will the same thing will happen with tertiary amine also? If I'll write down here, suppose CH3 N CH3 CH3 plus C double bond O Cl CH3. I will say there will be no reaction. Why? क्यों नहीं होगा? प्राइमरी अमाइन के साथ हो रहा है, सेकेंडरी अमाइन के साथ हो रहा है. Why it is not with the tertiary amine? Correct. Very good. कशिश ने एकदम perfect answer दिया. What about others? Why it is not possible with the tertiary amines? It is Miss, possible क्योंकि with वो the H primary नहीं है। amine. It is possible. Correct, because in the primary H amine you were नहीं है। having 2H groups, है ना? 2H था, तो एक HCl निकाला, काम चल गया. सेकेंडरी अमाइन में हमारे पास एक H था, वो भी निकाला, हो गया. टर्शियरी अमाइन में there is no H, तो निकालेंगे क्या बाहर? Correct, that is why there won't be reaction with the tertiary amine. Clear? Yes. चलो अभी नेक्स्ट हम जाएंगे कार्बाइल अमाइन रिएक्शन. सबका हो गया? शुड आई प्रोसीड? चलो रिएक्शन नंबर 5, ये आज का लास्ट रिएक्शन है, बाकी हम लोग शाम को करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन. कार्बाइल अमाइन रिएक्शन. राइट डाउन. बोलू? हाँ मैम।
Point number 1. Aliphatic or aromatic primary amines. Underline. Aliphatic or aromatic primary amines. Aliphatic or aromatic primary amines on heating with chloroform gives foul smell. Foul मतलब गंदा smell, bad smell, which is offensive. ठीक है? Give foul smelling product. Aliphatic or aromatic primary amines on heating with chloroform give foul smelling products called alkyl or aryl isocyanides. Alkyl or aryl isocyanides or carbylamine. Alkyl or aryl isocyanides or carbylamine. Point number 2. This reaction is a test for only primary amines. This reaction is the test for only primary amines. Point number 3. Secondary and tertiary amines do not give this test. Secondary and tertiary amines do not give this test. ठीक है, तो this is one of the method to find out whether it is primary amine or not. ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं कार्बिलामाइन. चलो रिएक्शन क्या है, एकदम सिंपल. RNH2, ये क्या है मेरा प्राइमरी अमाइन. Treated with chloroform CHCl3. This is your chloroform. Treated with 3 molecules of KOH, potassium hydroxide, and just heat. क्या मिलेगा अपने को, RNC. इसको बोलते हैं अल्काइल आइसोसाइनाइड. अल्काइल आइसोसाइनाइड. और दूसरा नाम क्या है इसका, कार्बिलामाइन. कार्बिलामाइन. ठीक है, प्लस 3 KCl प्लस 3 वाटर. ये तो बाय प्रोडक्ट है, इसका कुछ लेना देना नहीं है. तो RN. ठीक है, यहाँ से एक C आ गया इसके साथ, फिर ये आ गया KCl. ठीक है, और 3 वाटर आ गया. तो ये जो हम लोग को मिला, दैट इज द मेन प्रोडक्ट विच इज गिवन ओनली बाय द प्राइमरी अमाइन. इजी एकदम. चलो अभी तुम लोग ये नेक्स्ट वाला लिखो. CH3NH2 प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस KOH. कंप्लीट द रिएक्शन. दूसरा है C6H5NH2 प्लस CH3 प्लस KOH. कंप्लीट. Another reaction is CH3NH CH3 plus CHCl3 plus KOH. Complete the reaction. आएगा? हेलो. Yes, ma'am. हाँ, बाय Yes, प्रोडक्ट तो ma'am. सबका सेम ही रहने वाला है, खाली मेन प्रोडक्ट को चेंज करो बस. लास्ट वाले में क्या लिखेंगे, सेकेंडरी अमाइन. यहाँ पे क्या लिखोगे, नो रिएक्शन. ध्यान देना उधर पे, गड़बड़ नहीं करना. ये देखो सेकेंडरी है, ये दोनों प्राइमरी है. यहाँ पे आ जाएगा बट ये वाला नहीं आएगा. तो वहाँ पे आगे क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन. जानबूझ के दिया है मैंने वो. यस, पहला वाला आएगा प्रोडक्ट मिथाइल आइसोसाइनाइड. वेरी गुड, परफेक्ट है कशिश.
समझा ना सबको बच्चों आज का लेक्चर अच्छे से? सॉरी थोड़ा सा वो नेटवर्क की वजह से गड़बड़ हुआ, बट आई होप आपको समझा होगा। अभी अपना 2 ही बाकी है केमिकल रिएक्शन इसमें का। सॉरी, एक है अपना रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड और दूसरा जो है रिएक्शन विथ अरीन डायजोनियम सॉल्ट, फिर उसके बाद अजो कपलिंग वो सब है। 294 295 तक है चैप्टर, और हम लोग अभी कौन से पेज पे है? हो जाएगा 2-3 लेक्चर में। अभी हम लोग है पेज नंबर 292 पे और 295 तक ही है, मतलब 3 पेज है। एक लेक्चर में एक पेज पकड़ के चलो, तो मैक्स टू मैक्स 3 लेक्चर में हो जाएगा अपना। शाम को भी ले लेती हूँ, ठीक है? 6 to 7:30 चलेगा ना सबको? ग्रुप पे डाल देती हूँ मैं। आ गया सबका प्रोडक्ट C6H5NC बेंजाइल आइसोसाइनाइड। पहला वाला आएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड और थर्ड वाले में आएगा नो रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ टेस्ट व्हिच इज गिवन ओनली बाय प्राइमरी अमाइंस, नॉट बाय सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। ओके, कुछ डाउट है? कितने रिएक्शंस किए हम लोगों ने आज? टोटल 5 रिएक्शन। पढ़ते रहना, कुछ डाउट रहेगा तो पूछते रहो बीच बीच में। कल लेती हूँ तुम लोग का इवनिंग में रिवीजन लेक्चर। कौन से चैप्टर का लूँ? 1 घंटा लूँ कल इवनिंग में? थर्मो हो गया ना अपना? क्या आधा हुआ था? कितना हुआ था? थर्मो हो गया? हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोला था ना, बराबर। ठीक है, तो कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेते हैं, कोलरॉश लॉ तक पढ़ के आओ उतना। कल लेती हूँ, आज नहीं, आज पढ़ लो। हो गया सबका? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? नो मैम। किसका एक पॉइंट बताओ? क्या पूछा साक्षी? मुझे नहीं समझा, वापस बोलो। जैसे कार्बाइल रिएक्शन जो है ना, उसका जो फर्स्ट पॉइंट आपने बोला ना, वो रिपीट करो ना। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट। हाँ। अच्छा, ये कार्बिलामाइन का रिपीट करूं? 1 मिनट। हाँ, क्या बोला था मुझे याद है। एलिफैटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस on heating with chloroform give foul smelling products. Aliphatic or aromatic primary amines on heating with chloroform give foul smelling products called alkyl or aryl isocyanide. Alkyl or aryl isocyanide और कार्बिलामाइंस और कार्बिल अमाइंस। ओके, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। वेलकम। आई होप किसी को कुछ डाउट नहीं है। शाम को हम लोग और आगे के 2 रिएक्शंस करेंगे, 2 पेज और कर देंगे, हो गया तो। ठीक है, 6 to 7:30 इवनिंग। ठीक है, चलो, बाय बाय एवरीबॉडी, Bye, टेक केयर, हैव अ miss. गुड डे। बाय बाय बाय।